بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد سمیع اللہ ملک پروگرام سوال نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جو میرے گیسٹ آئے ہوئے ہیں، وہ اس حوالے سے ہے کہ آج کل جتوئی کا ایک برننگ ایشو چل رہا ہے، کہ ہارٹ ایشو چل رہا ہے. وکلا یعنی کہ تحصیل بار ایسوسی ایشن جتوئی اور اسسٹنٹ کمشنر کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے، اس کے بارے میں عوام الناس میں کافی تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے. مطلب عوام کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پس پردہ کیا ایسے محرکات ہیں جن کی وجہ سے بار کی طرف سے بھی اور اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے بھی ایک دوسرے کے خلاف بیان بھی آ رہے ہیں. اور تقریباً کوئی چوتھا پانچواں دن ہے، بار میں ہڑتال بھی چل رہی ہے جتوئی بار میں. اور اس کے علاوہ آج ایک بہت بڑی احتجاجی ریلی بھی اسسٹنٹ کمشنر جتوئی کے خلاف نکالی گئی ہے. تو اس حوالے سے آج میرے پاس ہمارے آفس میں تشریف لائے ہیں تحصیل بار ایسوسی ایشن جتوئی کے ایک سرگرم کارکن ایڈوکیٹ محمد علی ڈوگر صاحب. ان سے ہم تفصیلی اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ اس پورے معاملے کا اصل مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، اور آج کی احتجاجی جو ریلی تھی اس کے کیا نتائج آپ متوقع، آپ کو مطلب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر، پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ آپ کے یہاں آنے کا ایک مقصد ہے کہ پورا معاملہ بتانا، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی پہلے واضح کرنا ہے کہ آپ کا یہ اپنا ذاتی موقف ہوگا یا کہ پورا تحصیل بار ایسوسی ایشن کی طرف سے آپ کی نمائندگی ہوگی. رائٹ، کوشچن کی طرف بڑھیں. یہی بتائیں آپ پہلے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو شکریہ، آپ نے اس برننگ ایشو، ہارٹ ایشو کو آج ٹیک اپ کیا اور موقف لینا چاہا، کیونکہ مسائل وہ ہوتے ہیں جن کو عوام دیکھ رہی ہو اور ان کا حل بھی دیکھ رہی ہو کہ حل بھی اس طرح کرنا چاہیے. ہم وکلا برادری جو ہوتے ہیں نا، ہمارے ذاتی معاملات نہیں ہوتے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے. آپ بھی اس معاملے کو سمجھتے ہیں. وکلا ہمیشہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، کورٹس میں، کچہری میں، جہاں بھی ہو پبلک کی نمائندگی ہم وکیل حضرات کرتے ہیں. اب جو ہماری کورٹس کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمارے گرد و نواح، ہمارے معاشرے، ہمارے علاقے کے لوگ ہی اپنے مسائل لے کر ایک وکیل کے پاس آتے ہیں. وہ میں ہو سکتا ہوں، کوئی ہو سکتا ہے، سائلین کی صورت میں بات ہے. سائلین کی صورت میں آتے ہیں. اب جو ہماری کورٹس ہیں، مطلب سیشن کورٹس، سول کورٹس، اس کے علاوہ بھی کورٹس ہیں. تحصیلدار بھی ایز اے کورٹ کام کرتے ہیں، رجسٹریٹ کے طور پر. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی اے سی صاحب ہیں، وہاں بھی کورٹ ہے، اے سی کورٹ ہے. ٹھیک ہے. ایسے ڈسٹرکٹ لیول پہ پھر اے ڈی سی آر ہے. بالکل. تو یہ کورٹس ان کا ہوتا ہے، بالکل. پراپر وے میں کرتے ہیں. اب جب ایک وکیل کے پاس ایک میٹر آیا ہے اور وہ زیر سماعت ہو یا وہ قابل سماعت اے سی کورٹ کا بنتا ہو، تو ظاہر ہے وکیل نے تو ادھر جانا ہے. بالکل، اپنے سائل کے کام کے لیے جانا پڑتا سائل ہے. کے کام کے لیے جانا. بالکل. تو یہاں تک اگر آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وکیل اگر گیا ہے تو وکیل کا پرسنل معاملہ تو نہیں رہا، ذاتی معاملہ نہیں رہا. بالکل سائل کا ہی مسئلہ ٹھیک ہے، عوام کا ہی سائل مسئلہ کا لے کے ہے، گئے ہیں وہ. عوام کا ہے، ہمارے معاشرے کا ہے. جس جگہ تعیناتی ہے اے سی کی، اسی لوکیلٹی کا ہے. تو اس کو سننا، اس کا حل کرنا، اس کا مداوع کرنا، اس کی داد رسی اے سی کا ہی کام ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ جو شعور رکھنے والا طبقہ ہوگا نا، اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب اس کو تکلیف ہوگی تو وہ آواز بلند کرے گا. تو جب آواز بلند ہوگی تو جس کے خلاف ہوتی ہے لا محالہ اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے. سر، موقف کا بتا دیں کہ یہ بار کا موقف ہوگا یا آپ کا پرسنل ہے؟ میں پھر اسی آپ کے پہلے سوال کے ساتھ اسی سوال کو اٹیچ کروں گا کہ ہمارا جو موقف ہوتا ہے نا، وہ چاہے ہمارے زبانی ہو، زبان ہماری ہوتی ہے، لیکن وہ پبلک کے ایشوز ہوتے ہیں. اب میں جب اے سی کے پاس جاؤں گا، میرا پرسنل کوئی کام نہیں ہے. میں نے آپ کی نمائندگی کرنی ہے، میں نے اے بی سی کسی کی بھی نمائندگی کرنی ہے. جا کے وہ پبلک کا معاملہ ہے، میں نے اس کو جا کے پٹ اپ کرنا ہے. اس کے حل کے لیے میں نے وہاں پہ پیش ہونا ہے. ٹھیک ہے. سر، بطور صحافی ہم بھی نوٹ کر رہے ہیں، شہری بھی کافی نوٹ کر رہے ہیں، اور مختلف واٹس ایپ گروپوں میں بھی ہم چیک کرتے رہتے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر جتوئی کی تعریفیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ تعریفیں ہو رہی ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر جتوئی جیسے کوئی مسیحا آ جاتا ہے شہر میں، شہر کی حالت بدل رہی ہے، روڈیں کھلی ہو گئی ہیں، ناجائز تجاوزات کو ہٹا دیا گیا ہے، بازاروں کو بالکل صاف ستھرا کر دیا گیا ہے. تو یہاں تک تو ہم سن رہے ہیں. آپ نے اس بارے میں کیا پایا ہے ان کو کہ کیا وہ
ऐसे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं? मतलब सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और आप माशाल्लाह मामलात को, मसाइल को हमेशा उजागर करते हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मामलात पर। और जब मैं सहाफ़त मैंने ज्वाइन की थी जी तब मेरे ख्याल में आपके पास इदारा नवाए वक्त था, जी बिल्कुल तो मेरे पास एयरवाई न्यूज़ था। जी तो मेरे अंदर भी एक सहाफ़ी है, बिल्कुल। मैं चीज़ों को दोनों साइड से देखता हूँ, वकालत से भी, सहाफत से भी। इससे हटके मैं शहरी होने के नाते भी देखता हूँ। बिल्कुल। और एक ठीक है। और भी है कि अच्छा। आप एमपीए के उम्मीदवार, आपने ठीक है। इलेक्शन भी लड़ा है हाँ। जमात इस्लामी की तरफ मेरा से, एक- आपको अवामी सपोर्ट भी है। अवामी सपोर्ट है, वो चाहे चंद बंदों की हो या हजारों की वो हो, आपके पास मसाइल लेके तो आते होंगे ना। हमने स्टैंड लेना होता है, बिल्कुल हमने लोगों की आवाज़ आगे तक पहुंचानी है। बिल्कुल ऐसे। अब जो आपने क्वेश्चन किया कि एसी साहब की बड़ी बल्ले बल्ले हो रही है, बल्ले बल्ले तो मसीहा है, बिल्कुल मतलब साहब आप ये जो बल्ले बल्ले या मसीहा वाली बात है ना, आप भी सहाफ़ी हैं और इस वक्त वर्किंग सहाफ़ी हैं। मैं शायद एक्स हो गया हूँ, मेरी अब फील्ड और हो गई है। अब इस बल्ले बल्ले को ना आप मुझे किसी अवामी लेवल पर चेक करवाएं, कहीं अगर आपको नज़र आ रही हो तो ठीक वो है। बताएं। ठीक है। इल्ला कलील हमारे चंद यूट्यूबर, चंद टिकटॉकर्स, जी इसके अलावा आपको पब्लिक में अगर कोई बल्ले बल्ले नज़र आ रही हो तो वो बताएं। एक ठीक है। दूसरी बात ये, मैं इस सिटी जदोई से 8-10 किलोमीटर दूर रहता हूँ, सही है। ठीक। आप इस जदोई शहर के वासी हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इस शहर जतोई के सर्कल एरिया में, बाहर ना निकलें, म्यूनसिपल के एरिया में आप मुझे एक ऐसा काम बताएं जो शहर मौसूफ ने अपनी कैपेसिटी में शुरू करवाया हो, अपनी कैपेसिटी में शुरू करवाया हो, और वो उसका क्रेडिट ले लें कि ये काम मैंने किया है। अपनी जो बात माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो बात आपने की कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, जी। रोड्स खुली, ये वो, मतलब साहब ये इनके दायरा अख्तियार में नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट का है। ठीक है ठीक है। ये जो आजकल आप सुनते हैं, मैंने भी सुना है, वो सब दी माँ आ गई है ना, जी बिल्कुल। ये उसका एक समझ लें कि इधर सरकारी सरदार बन के आया हुआ है। हमारा इलाका, हमारा जतोई हमारी पसमानदा तहसील है ना, सही। ये तो पहले ही सरदारी निजाम में जकड़ी हुई थी, एक सरकारी सरदार आपके ऊपर मुसल्लत हो गया सही। है। अब इस सरकारी सरदार साहब ने जो काम किए हैं वो पंजाब गवर्नमेंट की असाइनमेंट है, ना कि इनका अपना शुरू करदा कोई काम है। नहीं सर, ठीक, मैं यहाँ मेरी बात को थोड़ा फॉलो करें आप और मुकम्मल सुनें इसको। मुकम्मल करें सर। अच्छा, अब जब ये बात आप करेंगे कि एक उसने ये काम कर दिया, तजावजात फलां फलां, तो ये पंजाब गवर्नमेंट का काम है, पूरे पंजाब में हुआ है, सिर्फ जतोई में नहीं हुआ। एक चीज़। दूसरा, मसीहा का जिक्र होता है कि जी वो मसीहा है। कौन सा ऐसा काम है जिसकी वजह से आप उसको मसीहा कहेंगे? कम अज़ कम मैं इस लोकेलिटी में रहते हुए, इस हल्का में रहते हुए, मैंने तो आज तक नहीं कुछ ऐसा पाया। अगर आपने एज ए सहाफ़ी कुछ नोट किया है तो आप मुझे बता दें, शायद मुझे भी ज़्यादा इल्म हो जाए। सर असल में बात पता है क्या है, यहाँ जो जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर आएंगे या आ चुके हैं, पहले आ चुके हैं, तो वो साफ ज़ाहिर गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं हैं। उनको जो भी अहकाम जारी होंगे वो यहाँ पे करेंगे। हम पीछे देखते आए हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर आते थे, अहकाम जो भी होते थे वो पूरे करते थे, नहीं करते थे। थोड़ी बहुत तब्दीली इस दौर में हमें नज़र ज़रूर आई है सर। वो ये है कि बेशक पंजाब हुकूमत के होंगे, सबके पास ही पंजाब हुकूमत बिल्कुल के ऐसे ऐसे हैं ना आर्टिस्ट। बिल्कुल ऐसे। तो कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो अभी तक हल तलब हैं। अपनी पर्सनल तौर पे हम कह सकते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब अपनी पर्सनली तो कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत के उनको मातहत हैं और वही चीज़ ही वो करेंगे जैसे उन्हें पंजाब हुकूमत कहेगी। जब बात आती है साइलिन के काम के हवाले से, जब आप जाते हैं उनके पास, तो वो बिहेवियर की शिकायत आई है कि वो गलत रवैया रखते हैं या मतलब बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं मतलब। तो वो आप बताएं कि मिसबिहेव कैसे हुआ है, किसके साथ हुआ है, या उसका बैकग्राउंड क्या था, और ये हड़ताल क्यों चल रही है उनके खिलाफ, और ये सारी अगर आप कहानी मुझे बता दें। जी, और ये नाज़रीन को भी। मैं आपको कहानी नहीं बताऊंगा जी सर। क्योंकि मेरे पास कहानियां नहीं होती, मैं हकीकत स्थान बंदा हूँ, मेरे पास हकीकत होती है। वही हाँ। ठीक है। तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये गवर्नमेंट की असाइनमेंट है। असाइनमेंट सरकारी सरदार साहब
اس کو فالو کر رہے ہیں. بالکل. اگر نہیں کریں گے تو گھر چلے جائیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا نا. بالکل. یہ انہوں نے لازمی کرنا ہے. بالکل. ڈیلی بیسس پہ رپورٹ ہونی ہوتی ہے بالکل. کہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کدھر ہوا ہے. اب ستھرا پنجاب ہے وہ بھی تو چل رہا ہے, چل رہا ہے. وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کے بالکل اسائنمنٹ ایسے, ہے. بالکل ایسے. جو اے سی صاحب کا دائرہ اختیار ہے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, جو پنجاب گورنمنٹ کی اسائنمنٹ آئی ہے وہ تو کرنی ہے, ادھر بیٹھ کے انہوں نے کرنا ہے نا. وہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کو کہیں ہوتی ہوئی اگر نظر آ رہی ہیں تو وہ بتائیں. لوگوں کے مسائل, یعنی کہ لوگوں کے مسائل, لوگوں کے مسائل ٹھیک اور ہے. ہماری عوام کی فلاح, ان کی داد رسی. بالکل. ٹھیک. اب آپ نے کہا جی ان کی بلے بلے. جی. ایک بندہ جو نچلے لیول سے آتا ہے نا, بالکل. کسی بڑی پوسٹ پہ, کسی اور محکمے سے اٹھ کے آتا ہے, جی. اے سی کی پوسٹ پہ, یا وہ ڈائریکٹ کسی بڑے عہدے پہ چلا جائے, تو اس کو سارا پتہ ہوتا ہے, ایک روڈ میپ اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے, اس کو لوگوں کی نفس کا پتہ ہوتا ہے. سسٹم سے ہو کے آتا ہے نا, سسٹم سے ہو کے ہی آتا ہے. آپ ایک صحافی کے طور پہ دیکھ لیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں افسر نے اگر کرپشن کرنی ہے تو کس کس وے سے کرنی ہے. بالکل, لیول تو مختلف ہی. حالانکہ آپ ان کے اندر کے بندے نہیں ہیں, پھر بھی آپ کو پتہ ہے. تو جو بندہ سسٹم کا مطلب کہ اندر کا آدمی ہو تو اس کو سارا پتہ ہوتا ہے. اب جب صاحب مصروف کی ادھر تعیناتی ہوتی ہے نا, جی. انہوں نے جو پہلا سٹیپ لیا, بلے بلے ان کی ہوئی, وہ کیا تھا. ان کا آفس ہے اے سی آفس. بالکل. اے سی آفس سے نکلتے سامنے تحصیل کمپلیکس ہے, تحصیلدار کا آفس ہے. بالکل. اس سائڈ پہ ہماری کچہری کی سٹینڈ ہے, بالکل. اپوزٹ دوسری سٹینڈ ہوتی ہے, سائیکل سٹینڈ وغیرہ. بالکل ہوتی ہے. اب جو وہ تحصیلدار آفس کے سامنے والی سٹینڈ ہے, وہاں ایک لڑکا ہے, مجھے اس کا صحیح نام نہیں یاد, اس کو گولی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. وہ وہاں پہ پرچی وغیرہ لوگوں کو دیتا ہے, جیسے سٹینڈ والے سٹینڈ کے لیے. بالکل. صاحب موصوف کی مطلب کہ سرکاری سردار صاحب جو ہمارے اے سی صاحب ہیں جتوئی کے, ان کی تعیناتی کے کچھ دن بعد یہ وہاں سے گزرتے ہیں, یا چاہے تحصیلدار آفس میں گئے, واپسی پہ اس لڑکے کو دیکھا ہے تو پوچھا کہ کیسے کیسے کھڑے ہو, کس کی اجازت سے پرچی لے رہے ہو. انہوں نے جو بھی بتایا اس بندے کو پکڑا, خود اس کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی بنوائی, تصویر بنوائی. جس کا وہ ویڈیو پہ چرچا ہوا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر جدوئی بھیس بدل کر جدوئی بھیس عوام کے بدل کر. مسائل, حالانکہ وہ بھیس بدل کر کوئی 4-5 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر دور نہیں, نہیں آمنے ہے, سامنے اپنے ہی آتے. آفس سے ہی نکلے تھے. آمنے سامنے ہی آتے. ٹھیک ہو گیا. جی. اب میں دیکھیں نا, میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ وہ کیسے اپنی نیک نامی حاصل کرتے ہیں, فیم حاصل کر رہے ہیں, فیم حاصل کرتے ہیں چند لوگوں کو استعمال کر کے. ٹھیک اس سے پردہ حقائق کیا ہے, آج بھی وہ گولی لڑکا سلیمانی ٹوپی پہن کے اے سی آفس کے سامنے اسی جگہ پر ہی کھڑے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہے. بالکل. تو اب یا اے سی صاحب اس وقت غلط تھے, یا آج اس لڑکے نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے کہ اے سی کو وہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا. وہ ابھی بھی ویسے سٹینڈ کام کر رہا ہے, پرچہ بھی ویسے ہو رہی ہیں, اور لوگوں کے ساتھ مار پیٹ بھی ہو رہی ہے. ویسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. بالکل. اب ایک واقعہ یہ ہو گیا ان کی بلے بلے کرانے کا. ٹھیک ہو گیا. چند لوگ انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, وہ ڈکار جو لے نا تو وہ صاحب موصوف اسی وقت لائی آتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک, یا چند لوگ اور بھی ہوں گے. اب آ جائیں آپ سبزی منڈی کے ایشو پہ. آپ اس شہر کے باسی ہیں, میں اگر کوئی بات غلط کر رہا ہوں تو آپ مجھے کہیں کہ یہ بات غلط ہے, جیسے میں نے آپ کو سٹینڈ والی بات بتائی. اب آ جائیں اے سی اپنا سبزی منڈی کے. سبزی منڈی کے ایشو کو جب میری ان کی تعیناتی ہوئی, تعیناتی کے ویری فاسٹ نہیں کہوں گا, چند دنوں بعد میں, میرے ساتھ انجمن تاجران جھوگی والا اور پریس کلب جھوگی والا کے چند ہمارے دوست, میں ان کو ان کے آفس میں گیا, ان کو ویلکم کیا, اور ان کو جا کے ویری فاسٹ ٹائم میں نے 3-4 ایشوز بتائے, جس میں ایک سبزی منڈی تھی, ہمارے شہر جتوئی کا پتافی چوک اور یہ سارا جو تجاوزات کا ہے ایشوز یہ بتائے, اور ہاسپٹل TH2 کے معاملات بتائے کہ وہاں کو صحیح سہولیات نہیں کریں. ٹھیک ہے. یہ 3-4 ایشوز تھے, میں نے ان کو وربلی وہاں پہ بتائے. ٹھیک ہے. چند دنوں بعد میں صبح جیسے جھوگی والا سے آتا ہوں نا, میں آ رہا تھا تو اے سی صاحب موصوف اپنی گاڑی سے اترے ہوئے ہیں, جیسے سبزی کے شاپر بندے ہوئے رکھے ہوتے ہیں نا سائڈ پہ, صاحب موصوف یوں شاپر اٹھا رہے ہیں, یوں پھینک رہے ہیں, کوئی روڈ پہ جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ان کا نقصان کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ایک سائڈ یہ ہے کہ اے سی صاحب تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں.
दूसरी तरफ ये है, क्या ये अमल ठीक है, इसको भी छोड़ दें कि क्या ये अमल ठीक था कि नहीं, उन्होंने किया, हम फिर भी इसको पॉजिटिव लेते हैं कि उन्होंने हमारी खातर हाँ जी। सुबह स्कूल एक्शन लिया है, स्कूल के बच्चे आते हैं तो उन्होंने रोड के लिए काम किया। बिल्कुल लेकिन बहुत मलिक जगह साहब- चलने के काबिल। लेकिन मलिक साहब उसी स्टैंड के हवाले से ही आप डेली बेस पे वहां पे जाएं। मुझे समझ आ रही है। मैं डेली आता हूँ, मैं- मुझे उस एक दिन के बाद वो सब्जी मंडी की रोड एरिया वहां पे ज्यादा तंग नजर आता है, खुला नजर नहीं बिल्कुल आता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वो एक दिन या दो एक दिन दिन। का अगर फर्क हुआ है तो ठीक है, वही- दोबारा से वैसे वही अच्छा, किया। वही एक दिन जब शहर मौसूफ सुबह सुबह वहां पहुंचे हुए थे, वही शहर मौसूफ सुबह सुबह भी वहां पहुंचे हुए थे उनकी लाइव कवरेज के लिए। क्या उस शहर मौसूफ को अब वहां पे उसकी नाक के नीचे सब्जी मंडी वाक़ है, क्या उनको अब वहां पे सुबह सुबह जो बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं, सरकारी मुलाजमीन आते हैं और लोग आते हैं, क्या वहां पे उनको डिस्टर्बेंस नजर नहीं आ रही? तो ये एक तरीका था उसके फेम हासिल करने फेम का। हासिल करने एक वो इशू, एक ये इशू, उसके बाद फिर ये तजावजात आ गई। तजावजात मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई आपने जो करना है आप करें। करें। ये क्या है, आप मौके के मजाज अफीसर हैं, सरकारी सरदार हैं, आप कर सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट के असाइनमेंट है, कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। सही है। मैं अगर राइट वे पे हूँ, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी कोई भी चीज़ अगर तजावजात में है, आए बिस्मिल्लाह करें। मैं तो उनके ऑफिस में कह के आया हूँ, भाई आए बिस्मिल्लाह करें। जहाँ हम गलत हैं, हमारी अगर तजावजात आती हैं, आप उड़ा दें, हम आपको नहीं कहेंगे। कानूनी तौर पे आप करें। लेकिन ये नहीं कि जाहिराना अंदाज सुल्तान रही बन के आप मतलब नेक नामी कमाएं, सही है। लेकिन पीछे कुछ ना हो। जैसे आप समझते हैं ना कि वो दरबार मिसल बनी हुई है, आगे दौड़ पीछे चौड़। पीछे चौड़ वाली बात है मलिक साहब, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। मेरी बातों की आप तारीफ कर रहे हैं, अगर आपको कहीं मेरी बात गलत नजर आए तो बताएं। नहीं, ऐसे तो है कि अगर मतलब एक जगह काम आज आपने कराया है, आप गए हैं, पीछे से वहीं वैसे शुरू हो गया काम। ठीक है ना? अच्छा, तजावजात आज हटाए हैं, पीछे से वैसे रेडियां आके खड़ी हो गई हैं। वही जुगी वाला चौक आज भी वैसे ही है, वैसे ही कि वहां से एक आम बाइकर भी नहीं गुजर सकता। नहीं गुजर सकता। इस पे फिर हो सकता है शहर मौसूफ भी इस पे कमेंट कर दें, या उनके जो सरकारी एहलकार रखे हुए हैं उन्होंने जो कमेंट्स वगैरह करते हैं वो करेंगे जी ये तो हम अवाम का कसूर है। जी, यही बात आएगी ना, ये हम अवाम का कसूर है जी। एक दिन अगर उन्होंने कह दिया है तो दूसरे दिन हम अवाम को करना चाहिए कि हम इससे दरगुजर करें, हम अपने रास्ते खुद खुले करें। अगर हर चीज़ अवाम ने करनी है तो फिर सरकारी सरदारान को, सरकारी अफिसरान को इतनी बड़ी महल्लात, इतनी बड़ी गाड़ियाँ, इतने बड़े पैकेजेस दे के फिर अवाम पर मुसल्लत करने का फ़ायदा क्या है? सही बात है। अवामी मसाइल ही हल करने हैं। अवामी मसाइल हल ये करने। असल में अवामी अगर कादिर है। देखें, मैं बता रहा हूँ, आपने एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन किया था, उसी कंटेक्स्ट में आपको सवाल करने की मैं मतलब नहीं जसारत करने दूंगा। मैं सारे के सारे आपको आप जवाब बोलें। सारे के सारे जवाब मैं आपको देता हूँ ठीक है। फर्दन एक एक करके। ठीक है। अब देखें, एक वो इशू, एक ये इशू। अब आ जाते हैं करप्शन पे। जी बिल्कुल। अब आ जाते हैं करप्शन पे। करप्शन करने वाला या चोरी करने वाला कभी भी आपको ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ। हजारों डकैट्स ऐसे हैं जो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, जी बिल्कुल। कभी उन्होंने इकरार किया कि हम डकैट हैं? नहीं। अभी देख लें रिसेंटली वाकया शहद लोंड का, हाँ जी आपके सामने है। बिल्कुल। कभी उसने कहा जी मैं गलत हूँ? नहीं। ऐसे ही जैसे चोर अपने आप को चोर कहलवाना पसंद नहीं करता, करप्ट आदमी कभी अपने ऊपर करप्शन की बात पसंद नहीं करता। ये एक रियलिटी है, ट्रुथ है। एक छोटा सा सवाल सर, इस एसी से हट के जो अभी मौजूद हैं एसी जदोई में, इससे हट के जो इससे पिछले एसी थे, क्या वो करप्ट नहीं थे? ठीक हो गया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं हर वो बात करूंगा जो हकीकत पर मबनी होगी और जिसके आप भी शाहिद होंगे। जी। इस एसी से पहले जो हमारे ट्रांसफर हो गए एसी मलिक साहब, उनका मामला भी आपके सामने है रिसेंटली जी। आपने देखा उन्होंने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ। जी। जुल्म की एक टाइम लिमिट है, उसके बाद अल्लाह ताला की लाठी जब बरसती है ना तो फिर वो बरसना शुरू कर देती है, रुकती नहीं है। ठीक है। उस एसी के पीछे चले जाएं, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, आप अरशद विर्क पे आ जाएं। जी बिल्कुल। ठीक, मेरा ख्याल शायद आप नाम नहीं लेना चाह रहे थे, मैं बता रहा हूँ आपको, आप अरशद विर्क का नाम लेना चाह रहे होंगे। जी। अरशद विर्क हमारी तहसील में जब मुसल्लत हुआ था, जी। वो भी महा करप्ट आदमी था। उसने सहाफ़ियों को, सारे नहीं,
हमारे वकला में भी चंद लोग चंद, होते हैं जो दोनों साइड पे खेलते हैं। बिल्कुल ऐसे। चंद सहाफ़ी दोस्त थे, चंद हमारे वकला दोस्त थे, चंद हमारे ताजर दोस्त थे, चंद हमारे सियासतदान दोस्त थे, जो उनका हल्का अहबाब, जो हल्का हबाब नहीं थे, जो उन्होंने अपना हल्का हबाब सेलेक्ट किया, अपने इर्द गिर्द उनको रखा और उनको उन्होंने बेनिफिट दिए चीनी की सूरत में, दरबारी कह सकते हैं उनको, कह सकते हैं, दरबारी कह सकते हैं, अच्छा अल्फाज है, ठीक। अच्छा लफ्ज़ है, ठीक। उन्होंने ये उन्होंने अपने साथ बिठाए और उनको चीनी की शक्ल में, खाद की शक्ल में और बाकी चीज़ों की शक्ल में फवायद दिए हैं। फवायद दिए। जी बिल्कुल, बड़ा उनको उन्होंने बेनिफिट दिए। बिल्कुल। आपको अगर याद ना हो तो मैं आपको बताता चलूं कि उस सहम मसूफ के खिलाफ ही फर्द वाहिद मैं था जिसने स्टैंड लिया था, और मेरे साथ मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ यंग जर्नलिस्ट जतोई का, जी बिल्कुल, जिन्होंने मेरे साथ स्टैंड लिया था। सही। और यंग जर्नलिस्ट ग्रुप के अलावा तहसील प्रेस क्लब के दोस्त थे, कोयटा प्रेस क्लब के दोस्त थे, तकरीबन तमाम साहब तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि उसमें तकरीबन कोई 98.5%, 1.5% कह लें, जी जी बिल्कुल ऐसे, एक साइड पे। 98% तकरीबन से। और आप ये देखें कि 8-9 दिनों में उसके खिलाफ अखबारों में, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में 200+ खबरें चली हैं, लगी हैं, जो रिकॉर्ड आज मेरे पास मौजूद है। बिल्कुल ऐसे सर, असल बात पता है। अच्छा, उसके सहाफ़ी का काम मैं है कवरेज देना सर। मैं बता रहा हूँ, सहाफ़ी फरीक नहीं बन सकता, बनना भी नहीं चाहिए, बनना भी नहीं चाहिए। सहाफ़ी का काम है। आज भी मैंने, अगर आपसे रब्ता हुआ है तो आज भी बतौर इंफॉर्मेशन के कि इस जो मसाइल चल रहे हैं बाहर के या कि असिस्टेंट ऑफिस के, इसके पीछे क्या है, बैकग्राउंड क्या है इसका, कि अवाम उन्नास को मालूमात हासिल करें। मैं वही बता रहा हूँ। देखें, अरशद वैद था, उसके खिलाफ मैंने स्टैंड लिया जी, 200+ उसके खिलाफ खबरें चली। उसके मामले में मेरे सीनियर्स वकला के साथ मेरे मामलात भी ख़राब हुए, लेकिन मैंने अपना मौक़िफ़, मैंने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा, और आज तक उसके खिलाफ मेरी एप्लीकेशंस चल रही हैं जो वो करके गया था। जी बिल्कुल। अब ये सहम मसरूफ़ हैं, आप रजिस्ट्री ब्रांच को उठा लें, जी, आपको वहाँ पे बैठे हुए लोग नजर आएंगे, जी, करप्शन नहीं, बैठे हुए लोग नजर आएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। सही है। आप सहाफ़ी हैं, आप इन्वेस्टिगेशन सहाफ़त के तौर पे जाके देखें। जी, एक तो होता है ना कि करप्शन हो रही हो, किसी को नजर ना आ रही हो, एक ये है कि एक बंदा करप्शन कर रहा है, वो आपको नजर आ रहा है, फिर भी आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल वो ऐसा। आपका बिठाया हुआ बंदा है। बिल्कुल सही है। रजिस्ट्री ब्रांच हो गई। उसके बाद आ जाए आप पटवार पे। जी हाँ, पटवारियों पे आए, बिल्कुल ऐसे। सहम मसूफ तैनात हो गया है। 15-20 दिनों के बाद इन्होंने सब पटवारियों को बुलाया, उनके ऑफिस पे छापे मारे, बरमला कहा कि मुझे मुंशी हज़रात नजर नहीं आने चाहिए। नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे। और कई सारे पटवारियों के इन्होंने बस्ते अपने कब्जे में लिए, उनके दफातर तक बंद किए कि हर पटवारी को अपने मोहल्ले में होना चाहिए। शहर में मुझे एक दो शायद मुअत्तल भी किया था मेरे ख्याल में। ज्यादा हो गया। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा जी। क्योंकि जाहिर है मैं यहाँ का बासी हूँ, सही। मैंने लोगों के राज रखने हैं, गुजारने की है। गुजारने वाली बात हो ना हो, लेकिन देखे ना कि जो हमारा हल्का हबाब है वो सरकारी मुलाजमीन है पटवारी, जाहिर है अब अगर वो मेरे साथ कोई बात शेयर करते हैं तो मैं उनका नाम नहीं लेता, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर बिल्कुल जाके बिल्कुल, जांचें। मतलब जराए। जराए नहीं, हकीकत है। अब देखिए कि वो जो पटवारी साहब जिनके बस्ते उन्होंने लिए, जिन पे छापे मारे, जिनके मुंशी हज़रात को भगाया, मसला क्या हुआ कुछ, उसके बाद फिर इनकी आपस में बार्गेनिंग स्टार्ट हुई। ठीक हो गया। ठीक, बार्गेनिंग स्टार्ट हुई। क्या था उसमें, लोग तो मंथलियाँ लेते हैं ना, सहम मसूफ ने वीकली डन की है पटवारियों से। यस, ठीक हो गया। वीकली डन की है कि 30,000 पर पटवारी हर हफ्ते देगा। हर हफ्ते देगा। ठीक है। और उसमें जो लोग दे रहे हैं वो आपके सामने काम कर रहे हैं, जो नहीं दे रहे आज भी उनमें से 2-3 बंदे ऐसे हैं जो मुअत्तल हैं। आप देखें, रिकॉर्ड निकलवाएं, सहाफ़ी के तौर पे निकलवाएं, ठीक है। शहरी के तौर पे निकलवाएं, ठीक है। और फिर उस पर प्रोग्राम भी करें आप कि ठीक हाँ है। फलां दोस्त, फलां पटवारी, फलां मौजे के लोग मुअत्तल हैं अभी तक। फिर देखें वो क्यों मुअत्तल हैं। अगर वो इसी वजह से मुअत्तल हो तो ठीक, अगर वजह कोई और हो, मेरे पास गलत इंफॉर्मेशन हो, तो मैं बड़े खुले दिल का बंदा हूँ, मैं जहाँ तनकीद करता हूँ तो फिर वहाँ पे मैं माजरत भी करता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलत बात होगी तो फिर मैं माजरत करूँगा। बिल्कुल सही है। लेकिन ये और बात रियलिटी है और रियल बेस है, बिल्कुल हकीकत। मतलब आपके पास इसके प्रूफ हैं,
गवाह या प्रूफ के कह तौर सकते पे, हैं आप, सबूत या गवाह कह जैसे सकते होता है, कह सकते क्योंकि आप वकील हैं, आप पहले इन चीज़ों को कह सकते हैं आप। देखेंगे तो आगे बात मैं करेंगे। देखें मतलब मैं चीज़ों को ना ऐसे वकील बाद में देखता हूँ, एज ए शहरी मैं पहले देखता हूँ। ठीक हो गया। एज ए शहरी हमें देखना चाहिए, मसाइल को हल करना चाहिए। देखें हमारे मुआशरे में वकील को अच्छी नज़र से लोग नहीं देखते। मैं बड़ी कड़वी कड़वी बातें करता हूँ और हकीकत पर मबनी बातें करने वाला सही है, आदमी हूँ। सही है। वकील को अच्छी नज़र से नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? कि लोगों के माइंड में गलत मिथ बन चुकी है कि ये अपने ज़ाती मफादात की खातिर ऑफिसर से उलझते हैं जाके, हालांकि ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा। अगर आपका मामला मेरे पास हो, आपका काम हो फर्ज या किसी ऑफिसर तक, मैं आपके पास जाऊं, वहां जाके चुप करके बैठ जाऊं, तो क्या आप मुझ पे राजी रहेंगे? आप तो यही कहेंगे वकील साहब तो जाके मिल गए हैं, चुप करके बैठ गए। सेम यही चीज कुछ सहाफियों के साथ भी है कि सहाफी भी अवामी मसाइल के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं कुछ है जो होते हैं। जाते हैं वहाँ अवामी मसाइल के लिए और बदनाम होके आ जाते हैं। बिल्कुल, कि ये ऐसे जो ना हर फील्ड में होते हैं। होते हैं। ये सियारे, ये सितारे हर फील्ड सर ये तो हो गया रजिस्ट्री ब्रांच, उसके बाद स्टैंड हो गया, पटवारी हो गए, अराजी रिकॉर्ड सेंटर में भी हर जगह हो रही है। ऐसे ही हो गए। हाँ, बाकी जितने भी महकमे तहसील तो देखिए तकरीबन तमाम महकमे इस मतलब हिसाब के अंदर हैं। ऐसे महकमे जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे मामला चल रहे हैं तो वो तब जाके चले हैं जब उनके मामला इनके साथ तय हो गए। तय हुए हैं। ठीक उससे है। पहले वो मामला रुके हैं। वो चाहे कोई रफाई इदारा था, THQ में भी ऐसे है। मैं बता रहा हूँ, वो चाहे कोई इदारा है जो ठीक। तहसील में वाक़ है, वो रफाई हो, वो कोई भी हो, वो पहले रुका है। वो तब जाके चला है जब मामला तय हुए। तय हुए हैं। अब आते हैं इसी जो हालिया आपका ये एहतजाज चल रहे हैं बार एसोसिएशन जतोई के, आज भी एक काफ़ी बड़ी रैली हमने देखी है और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर भी आप तमाम दोस्त गए हुए थे, ग्रेड चौक तक भी आए हैं, अपनी अदालत से भी शुरू हुए आप। तो इसके पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं कि ये दूसरा तीसरा चौथा दिन है, एक तनाव की सी कैफियत आ गई है जतोई शहर में। एक मतलब हमारा बर्निंग इशू यही है, छोटा सा शहर है हमारा कि हमारी एक बहुत बड़ी बिरादरी है वकला बिरादरी, और इधर से सबसे बड़ा जो समझ लें इंतज़ामी अफसर है हमारा। तो ये हमारे लिए तो काफ़ी मसाइल हैं। मसाइल क्या, हमें तजस्सुस है, अवाम को भी तजस्सुस है कि इतना क्या ऐसा इशू हो गया है कि ये दो जो बड़े मतलब वो हैं हमारे सतून समझ लें, बिल्कुल। वो क्यों आपस में टकरा गए हैं या क्यों ऐसी सूरत हाल बन गई। इसका बैकग्राउंड अब जो रियल हो, ताकि कल को अगर असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी इसी प्लेटफॉर्म से अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो वो आप राइट। देखें, मैं अपनी सफाई पेश करूं या बार बार ये कहूं कि जो बातें मैं कर रहा हूँ वो हकीकत पर मबनी है, तो वो अपने मुंह मियाँ मिठू बनने सही वाली है। बात है। आप जर्नलिस्ट के तौर पे उसको इन्वेस्टिगेट करते रहना। बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं इस इशू पे जो आप डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा हालिया इशू है, हाँ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग इशू। अब देखिए मेरे सर, मैंने पहले भी कहा, हर बात में मैं ये बात कोट कर रहा हूँ कि वकील का कोई मामला पर्सनल नहीं होता। ओके हो गया, पर्सनल नहीं है। पर्सनल नहीं होता। अब हमारे जो वकला दोस्त रेवेन्यू कोर्ट्स का काम करते हैं, रेवेन्यू मामला को टिकअप करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। ठीक, वो लेके एसी के पास तो जाना है, उन्होंने लामाना एसी कोर्ट है, काम के सिलसिले में जाना है, अपने साइड के काम में। अपने साइड के साथ जाना है। बिल्कुल। अब कोई वकील अपना पर्सनल इशू तो नहीं लेके जा रहा, नहीं, वो आपके साथ, उसके साथ, फलां के साथ उसने जाना है, साहिब के साथ जाना है। अब हमारे वकील साहब, हमारे सीनियर दोस्त हैं जो रेवेन्यू के काम करते हैं, मैं उनके नाम नहीं लेता, ठीक है। वो गए हैं उनके ऑफिस में। एक दो जैसे पहले ये आए हैं, पहले तो कई हफ्ते मतलब कोर्ट वर्क ही बंद रहा कि साहब मसूद अभी नए आए हैं, मिसलें देख रहे हैं, काम को समझ रहे हैं। उसके बाद फिर पहले 1-2 महीने बिल्कुल काम हुए ही नहीं है। महीना कह सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये मामला देखेंगे। अच्छा, वो पेशियाँ लगती रही हर हफ्ते, मतलब वीक में एक दिन तय है, वो कोर्ट वर्क करते हैं। जब कोर्ट वर्क स्टार्ट हुआ तो अगर वकील साहब कोई गए हैं तो उनके साथ जो उनका स्टाइल था, जो उनके साथ उनका रवैया था, जो उनका सलूक था, वो ऐसा था कि जैसे किसी बंदे को डिग्रेड करने वाला। ठीक हो गया। ठीक। अब Insult बात फिर वही है कि आप जब मतलब ये समझें कि मैं ठीक हूँ तो फिर वो मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल। इज्जतदार बंदा इज्जत दे के इज्जत लेता है। बिल्कुल ऐसे है। इज्जत वाहिद चीज है
जो देकर मिलती है, सही है, मांग कर नहीं मिलती, मांगने से भीख मिलती है। ठीक, अगर साहिब मौसूफ कहें कि मुझे इज्जत दें, ये नहीं हो सकता, जबरदस्ती, नहीं हो सकता, बिल्कुल किसी ऐसे। सूरत नहीं हो सकता। इज्जत देंगे, इज्जत ले लेंगे। बिल्कुल ऐसे है। अब जब वकला हज़रात गए हैं, वो उन्होंने एक दफ़ा बर्दाश्त किया मैं कि साहिब मौसूफ हो सकता है घरेलू किसी परेशानी में बैठे एक हैं। रिक्वेस्ट, जी। आप नाम भी बता दें नाज़रीन को कि कौन से दोस्त हमारे गए थे बुकला हज़रात, अच्छा, मैं जहाँ से स्टार्ट हुआ मैं है। उसी तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ, ठीक। मैं बता के जाऊंगा आपको। ठीक है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, अब बर्दाश्त किया कि हो सकता है साहिब मौसूफ किसी घरेलू परेशानियों में बैठे हों, हो सकता है आज मसाइल, उनका मूड ठीक नहीं है, कोई परेशानी हो सकती है, इंसानियत के नाते कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल, बंदा डिस्टर्ब बैठा हो। एक दफ़ा, दो दफ़ा, उसके बाद हमारे एक सीनियर दोस्त हैं वकील साहब, वो मुझे बताते हैं कि जी हम गए, उनका जो रीडर ऑफिस है वहाँ पे वेटिंग एरिया है, वहाँ बैठे हैं। जी जी बिल्कुल, वहाँ पे एक बंदा बता रहा है, ऑफिस के एहलकार है, कि एसी साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं, एसी साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि वकील साहब जब भी आए उनको बिठाना है, वेट कराना है, स्पेशल उसी वकील के लिए, नहीं जो भी वकील है, ठीक है, जो भी आए ठीक है, उनको बिठाना है अवाम के सामने, ताकि अवाम को पता चले कि मैं वकीलों के साथ क्या करता हूँ। तो अच्छा, भाई वकील कोई अपना काम लेके आते हैं। ये एसी ऑफिस के एहलकार ने बताइए ये यस बात? यस। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब जब ये चीज़ें आई सामने, वो दोस्त जो वहाँ बैठे हुए थे, मैं नहीं था, मैं जी, जी, आपको मुबैना बता रहा हूँ जो जैसे उन्होंने बताया, गुजरी है। ठीक है, अब वो जाके जब पेश होते हैं एक साहब के पास, फिर वहाँ पे वही ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे करें, वैसे करें, मतलब कि टाइम गेन है, मतलब उनको बस। लेट ही करा रहे हैं, बस ठीक हो गया, मसला हल नहीं कर रहे, मसाइल नहीं हल कर रहे, हल नहीं कर रहे, हल नहीं कर रहे, हल तरफ नहीं जा रहे। सही है, अब वो दोस्त वहाँ से आते हैं, फिर हमें किसी दोस्त ने बताया कि एसी साहब के ना एक माइंड में एक और टास्क है कि यहाँ पर जाके एसी ऑफिस की रेट कायम करनी है, क्योंकि जो मलिक तारक साहब यहाँ से गए हैं, जो इज्जत फजाई के साथ गए हैं, जी बिल्कुल, तो एसी ऑफिस का, एसी शख्स का वो रोग नहीं रहा, इमेज बहाल करना लिहाजा है, वो इमेज बहाल करना है, बल्कि और ज्यादा करना है, और क्रख्त सख्त पता नहीं क्या कुछ बन के बैठना है कि अवाम को पता चले हाँ कोई बंदा आया बैठा है। ठीक हो गया, यही काम उन्होंने अवाम के साथ किया, यही काम उन्होंने सहाफ़ी बरादरी के साथ किया, यही काम उन्होंने वकला के साथ किया, यही काम उन्होंने हर इज्जतदार बंदे के साथ किया। सही है, अब जो बंदा दूर बैठा है, जिसको वो नेक नामी अपने मोटरसाइकिल की दिखाए, जिसको नेक नामी वो अपनी सब्जी मंडी की दिखाए, जिसको नेक नामी वो अपने तजावजात की दिखाए, जिसको वो नेक नामी अपने सुथरे पंजाब की दिखाए, जिसको नेक नामी वो अपने जाके शहर के किसी मतलब के गली मोहल्ले कूचे की रोड किसी मतलब आगे बढ़ी हुई किसी सड़क को तोड़ने की दिखाए, या फिर वो सफाई तो- सुथराई की, ठीक जैसे है ना, म्यूनसिपल कमेटी का वो मतलब तो करने वाले वैसे ही काम कर रहे हैं वो आप। तो करने वाले काम हैं, आज तक नहीं रुके। ये एसी साहब हो या कोई और हो, उन्होंने करने हैं। करने हैं, असल मसाइल जो हैं अवाम के हैं, आप अवाम की दादरसी के लिए इधर आए हैं, अवाम के मसाइल के हल के लिए इधर आए हैं। अब जब आप एक वकील साइल को लेके जाता है, उसके मामला हल नहीं हो सकते, तो क्या एक आम बंदा जो जाएगा, पब्लिक का बंदा, उसके मसाइल हल होंगे? लेकिन पब्लिक के लिए एसी साहब ने शुरू में, आपका नहीं मुझे पता, मैं आपको बता रहा हूँ आपका नहीं पता, जो आप बात कर वो रहे हैं, अपने मैं उसी ऑफिस के तरफ बाहर आके बैठते मैं थे उसी तरफ आ रहा हूँ। और पब्लिक के लिए कि इनके मसाइल डेली बेस पे हम वहाँ हल करते रहेंगे, और वो भी Right. मतलब डेली उनकी तस्वीरें भी हमारे पास आती थी, हमारे सहाफ़ी दोस्त कवरेज के लिए भी जाते थे। मैं तो आपको उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वहाँ भी मसाइल हल होते थे या वो भी सिर्फ ड्रामा था? मैं आपको बता रहा हूँ, आपने लफ्ज़ ड्रामा इस्तेमाल किया, अच्छा लफ्ज़ है, बहुत अच्छा लफ्ज़ है, बल्कि ये ड्रामा ही था। अच्छा, एस साहब आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, गाड़ी खड़ी करने से पहले घर से रवानगी से पहले अपने एहलकारों को बताते हैं कि मैं आ रहा हूँ, 2 कुर्सियाँ इस तरफ, 2 कुर्सियाँ इस तरफ, एक लकड़ी वाला बेंच सामने रख के, एक चेयर सामने रखनी है, एक स्टूल सामने रखना है, एक बंदे को वहाँ पे बिठाना है, मैं आया। ठीक हो गया, पूरा सेटअप मतलब तैयार होना ठीक, चाहिए। जैसे टिकटॉकर है ना आज का हमारा मुआशरा, जी वो बिल्कुल, सहम मसूफ आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, वो आके अपनी चेयर पे विराजमान होते हैं। एक बुजुर्ग से बंदे को आपने कभी देखा कोई नौजवान बंदा उनके साथ दादरसी के लिए गया बैठो?
कोई पढ़ा लिखा बंदा उन्होंने अपने साथ बिठाया हो। मतलब वो भी सिलेक्टेड होते हैं। मैं बता रहा हूँ, आपको मैं चीजें बता रहा हूँ, आप जज करें उनको। ठीक हो गया। आप कभी मुझे बताएं कि उन्होंने उस दादरसी के लिए किसी पढ़े लिखे बंदे को अपने साथ बिठाया हो, किसी शऊर याफ्ता बंदे को साथ बिठाया हो। वो देखते हैं कि एक मतलब कि बड़ी एज का आदमी है, बुजुर्ग सा बंदा है, उसको उसने साथ बिठाया है, एप्लीकेशन पकड़ी है, उस पर जो भी किया उन्होंने। क्या एक दिन में आप मुझे बता दें ऐसे साथी कोई भी एप्लीकेशन फाइल लेके गया हो, एक दिन वो मसला हल हो सकता है? नहीं होता। कभी मुझे बता देंगे फॉलो आप पे किसी एप्लीकेशन पे उन्होंने कोई बताया हो कि क्या हुआ है? नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लफ्ज आपने इस्तेमाल की ना ड्रामे वाला, ये उससे भी बढ़ के है। मतलब ये भी फेम हासिल करने का एक तरीका है। फेम हासिल करने का एक तरीका है जो अपनाया गया था और अपनाया जा रहा है। ठीक, अब उन वकील भाई के आप नाम बताएंगे? हाँ, और अच्छा, नेक्स्ट आपकी क्या होगी? मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो एक बैकग्राउंड था, जो एक चीजें चलती आ रही थी जी। अब जो आप बता रहे थे ना कि पूछ रहे थे, उसमें हमारे चंद रेवेन्यू कोर्ट्स के जो वकील हजरात हैं, हमारे सीनियर हैं, इंतहाई मुतबर शख्सियत हैं, साबिक वो हमारे सदूर रह चुके हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, बाद सीनियर कौंसल्स हैं हमारे। उसमें जहाँ सजाद साहब हैं, जुल्फ़िकार गदलानी साहब हैं, जहाँ रियाज साहब हैं, महारजूर बख्श साहब हैं, आज सब ये सब दोस्त सारे दोस्त थे। हमारे सरदार सईद खान गुपांग साहब ने बड़ी अच्छी स्पीच की है। जुल्फ़िकार खान गदलानी साहब हमारी आज की रैली का हिस्सा थे। बात के मुताबिक एक सवाल कर सकते हैं। मैं ये बात सुन लें, सिर्फ ये यहीं पे जी, मलिक जावेद औलख साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं उस तरफ भी आता हूँ। अच्छा, आज ये सारे लोग रैली का हिस्सा थे जी। अब जो आपने इसी में से एक सवाल निकाला मलिक जावेद साहब का। जी बिल्कुल। देखें, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा ना कि हर फैमिली में, हर कम्युनिटी में, हर इदारे में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो मुखालिफ सिमत में जाके खड़ते हैं। आज की आप सहाफत को देख लें, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, आज के आप मुआशरे को देख लें। अब मलिक साहब जिस स्टैंड के साथ उधर गए हैं, वो मलिक साहब का अपना स्टैंड नहीं है। मलिक साहब को एक उनका रिश्तेदार है, एक उनका करीबी दोस्त है, वो साहिब मौसूफ पाकिस्तान में आए हुए हैं, वो उनके ताल्लुकदार हैं, रिश्तेदार भी हैं, उनका याराना है एसी साहब के साथ। ठीक हो गया। उनकी एक फरमाइश थी, उन्होंने जाके स्टेटमेंट दी है। मलिक साहब आज भी बार के साथ हैं। बार के अलावा मलिक साहब, मेरा नहीं ख्याल, वो 3 बार सदर रह चुके हैं, वो बार के मुखालिफ कभी नहीं जाएंगे। सही है। अच्छा, मलिक साहब के बयान में आपने सुना वो कह रहे थे कि मैं 3 बार का सदर हूँ। 3 बार का सदर होना एहसास की बात है। बार ने उनको इज्जत दी है और वो इस इज्जत का मान भी रखते हैं, मान रखेंगे मुस्तकबिल में, वो कभी भी नहीं जाएंगे। आज की रैली में उनको फोन कॉल पे हमने लिया था, शायद खिची साहब ने उनको कॉल की थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं आज मुल्तान हूँ, मैं नहीं आ सका। कल वो हमारे साथ बैठेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह उनकी तस्वीर सेंड करूंगा। कल हमारी 11 बजे की मीटिंग है बार हाल में, वो हमारे साथ बैठे होंगे। ठीक है। रही बात, अगर वो 3 साल प्रेसिडेंट रहे हैं, आज हमारे साथ सईद खान गुपांग साहब थे, वो 4 बार के सदर हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे साथ आज जाम रियाज साहब थे, वो अलीपुर के भी सदर रहे हैं, वो जतोई के भी सदर रहे हैं, सीनियर मोस्ट हैं। ठीक, सीनियर मोस्ट हैं। उसके अलावा हमारे साथ आज तकरीबन दर्जनों ऐसे हमारे सीनियर दोस्त हैं जो सदर सेक्रेटरी रह चुके हैं। नहीं, वकला तो सारे थे, वो तो हमने देखा है रैली। और मलिक जावेद साहब भी हमारे साथ हैं, उन्होंने फोन पे भी कहा है, वो कल हमारी मीटिंग में भी होंगे। अच्छा, उस दिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुबज्जना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुजव्वदा कॉन्फ्रेंस में, मुजव्वदा ठीक, जो उनके ऑफिस में ली गई थी, तो एक मुजव्वदा सहाफी के थ्रू जो ली गई थी, उसमें जो एक हमारे उधर दोस्त खड़े हुए थे, फैसल मदनी साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बहुत अच्छे बल्कि कारकुन हैं बार की सियासत, बार की पॉलिटिक्स से। वो उससे अगले दिन, बल्कि उस वीडियो के कुछ लम्हे बाद ही उन्होंने स्ट्राइक की हिमायत की है, बाकायदा उन्होंने हिमायत की है। वो कह रहे थे कि हम बार की हड़ताल के साथ हैं। मतलब ये कि वो जितने भी दोस्त बशमूल मलिक जावेद साहब, उनके साथ जितने भी गए हुए थे एसीआर में, जो उन्होंने वो सारे बार के जारी किया है, वो सारे बार के साथ हैं। बार के साथ हैं, बार से अलग। अब नेक्स्ट क्या हिकमत अमली होगी सर? नेक्स्ट हमारी हिकमत अमली मतलब कोई सुलह की तरफ जा सकता है मामला? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे वकला साहबान भी यही कहते हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, अवाम को भी यही समझना चाहिए, हमारे ज़ाती मसाइल नहीं है। आज अगर 200, 150 या 100 जितना भी आप कह लें, वकील हजरात आए हुए थे एहतजाज के लिए, अगर एक वकील का एक साइल भी एसी कोर्ट का साइल हो तो कितने अवाम के इशू हैं,
क्या ये चीजें बहुत नजर नहीं आ रही? बहुत ज्यादा बिल्कुल। और ये बात तो हकीकत अच्छा, है कि वो गला अब- अगर कोई केस लेके जाते हैं तो वो उनका जाती तो साथी नहीं नहीं होता। होता। अब जो बात है ना, आप कह रहे हैं कि सुलह की तरफ हम मजहमत करते हैं सिर्फ हक के लिए, ठीक हो गया, हम मजहमत करते हैं हक लेने के लिए। ठीक है, सहाफ़ी का काम मसाइल को उजागर करना होता है, बिल्कुल। वकील का काम उन उजागर करदा मसाइल के हल हल की तरफ लीगल लेके जाना। कानूनी हल की तरफ जाना होता है। बिल्कुल ऐसे। अब जब हम कानूनी हल की तरफ जाते हैं, अगर हल नहीं निकलता तो फिर आखिरी रास्ता जो होता है ना, वो मज़ाहमत का होता है। मज़ाहमत का कतई तौर पे मतलब ये नहीं होता है कि हम उसके ज़ाती मुखालफ हैं। ज़ाती मुखालफत हमारी नहीं है, नहीं है किसी के साथ, हमारी अवामी मुखालफत है। बिल्कुल ऐसे। हम अवाम के राइट्स की खातिर उसकी मुखालफत कर रहे हैं। अगर वो तहे दिल से अपने किए गए गुनाहों से माफ़ी मांगकर, बार के दोस्तों के साथ जो उसका मिसबिहेव है हमारे सीनियर दोस्तों के साथ, उसकी माफ़ी मांगकर राह रास्त पे आकर कोर्ट वर्क सही मानों में करेगा, तो हमारा उसके साथ कोई ज़ाती मैटर तो है नहीं। अदरवाइज जो हमारे मराहिल हैं वो हमने चलाए हुए हैं, स्ट्राइक भी हमने की है। अच्छा, अब हमने इसमें स्ट्राइक की पंजाब है। बार कौंसिल तक ये मामला चला गया है। पंजाब बार कौंसिल की तरफ से भी स्ट्राइक का ऐलान हुआ था। हमने आज ये स्टेप लिया है। कल हमारी मीटिंग है, सर सेक्रेटरी साहब होंगे, हमारे पूरे हाउस की मीटिंग है, उसमें जो नेक्स्ट हमारा लाहे अमल होगा वो बनाएंगे, वो हम अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने सुना मलिक मोहम्मद अली डोगर साहब जो बार की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी और अवामी हिमायत की तरफ से भी, अवामी मसाइल के हल के लिए भी, मतलब उन्होंने सारी जो बातें थी वो वजाहत से बयान की हैं और बताया है कि हमारा कोई पर्सनल इशू नहीं है असिस्टेंट कमिश्नर जतोई साहब के साथ। ये हमारे अवामी मसाइल ही होते हैं जो हम उनके पास लेके जाते हैं हल करवाने के लिए, लेकिन वो उसमें हमारे साथ भी अच्छा रवैया नहीं रखते, तो वो आम आदमी के साथ कैसा अच्छा रवैया रखेंगे। और इसी प्लेटफार्म के तवज्जुह से मैं मलिक मोहम्मद अली डोगर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आवाम को सारी वजाहत फराहम की है। और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर जतोई को भी मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है, ये दावत है कि अगर इस इंटरव्यू के बदले में, इसके जवाब में अगर आप भी अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहें तो ये प्लेटफार्म हर वक्त हाजिर है। वस्सलाम।